सो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन द पैरेलल सर्किट्स इज now our next question is in the circuit shown in figure in the circuit shown in figure in the circuit shown in figure the current through the inductor through the inductor L is आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो है 0 एम्पियर। अगला जो ऑप्शन है वो दे रखा है आपको 3 एम्पियर। सी जो ऑप्शन है वो दे रखा है 4 एम्पियर और जो लास्ट ऑप्शन है वो दे रखा है 8 एम्पियर। ठीक है, और क्वेश्चन का एक डायग्राम गिवन है वो देख लेते हैं क्या है। 120 देन अगला ऑप्शन जो है हमारा है इट इज L एंड नेक्स्ट है R एंड लास्ट है C और ये रहा C। और क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू करंट की दे रखी है वो है 5 एंड इट इज 4। ठीक है यहाँ तक। सो ये रहा आपका क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। सो नाउ सेम जो है क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा लैग और लीड के बजाय सीधे क्या पूछ लिया है, करंट थ्रू द इंडक्टर। देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है हमारे पास, फेजर डायग्राम। सो ड्रॉ करते हैं अपना फेजर डायग्राम। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में क्या रेफरेंस पर आएगा, वोल्टेज। ठीक है ना। अब अगर चेक करा जाए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए जो करंट क्या करेगी, लीड करेगी, और रेजिस्टर के लिए जो करंट है वो इन फेज होगी। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई, ये जो IC है ये 4 है और यहाँ कोई फेजर सम होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या हो। अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊं, देखिएगा आई एम अप्लाइंग KCL एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो KCL इस पॉइंट पे लगेगा -5 प्लस ऑफ IR plus of IC is equals to 0, then 5 is equals to IR plus IC. Now 5 square that is equals to IR square plus IC square. Now how much is your IC? IC is given to you 4. ठीक है, so it is 5 square IR square plus of what? It is IC is 4, 16. ठीक है, तो 25 minus 16 that is 9 and 9 that is equals to IR square. So IR की तो वैल्यू आ गई 3 एम्पियर आ गई। ठीक है यहाँ तक। सो हम यहाँ मार्क कर देते हैं IR की वैल्यू जो कितनी आ गई है, 3 एम्पियर आ गई है। ठीक है यहाँ तक। नाउ अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट इसका ड्रॉ करते हैं, देन वी विल हैव इट इज -5। ओके लेट्स सी। सो अगर हम यहां पर देखें तो इस पॉइंट पर अगर KCL लगाते हैं देन इट इज नॉट गिविंग एग्जैक्ट आंसर। ओके, बिकॉज -5 इट इज -5 प्लस IL प्लस ऑफ 5. then if you apply the KCL at this point you are getting 0 answer because 5 equals to IL plus it is 5, then 5 to 5 it is 5 square, it is not okay. Let's see, it is 5 square is equals to IL square plus 25. No, it is wrong. Let's see, is there any mistake or not? So पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। So स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन की मिस्टेक तो नहीं है कोई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल on our parallel circuits. So our next numerical is the voltage VC1, VC2 and VC3 across the capacitors,
across the capacitors in the circuit shown in figure. Okay, under the steady state, are respectively. Now your options are 80 volt, then 32 volt and 48 volt. In B option we have 80 volt, 48 volt and 32 volt. Okay. In the next part C, it is 20 volt, 8 volt and 12 volt. In the D option, they are 20 volt, 12 volt and 8 volt. Okay. Now let's see the diagram of the given circuit. So we have 100 volt, it is of 100 volt, then a 10k resistance, it is a 10k resistance, 1F capacitor, and the voltage across this is VC1. Then we have an inductor, it is of 1H. Then we have 40k resistance. After that, a capacitor of 2 farad and it is VC2. Okay. Then we have inductor of 2H and a 25k resistance, and after that again we have a capacitor whose value is 3 farad and voltage across it is VC3. Okay, so this is your question. Now let's see what's its solution. Okay, so the voltage VC1, VC2 and VC3 across the capacitor in the circuit shown in figure under the steady state. Now what is the meaning of steady state? First, you know the under steady state. Okay, I have told you many times. Okay, and first thing about the circuit is what? It is a DC circuit. It is what circuit? DC circuit. And DC circuit frequency is how much? 50 Hertz. Okay. Okay, sorry, it is 0 Hertz. For DC circuit, the frequency is 0 Hertz. The 50 Hertz is for AC frequency. Okay. Now, if you remember that the capacitor at DC is open circuited. It is open circuited. So we have to draw the diagram for the open circuit condition, and then when you draw the diagram, you will calculate your voltages according to the method of analysis. ठीक है, तो draw करते हैं इसका diagram at DC circuits. Okay. Now if you see also, if f is 0, then t is also infinite, and t is infinite is called steady state that we have discussed. Okay, in your purely inductive and purely capacitive circuit. So start करते हैं हम अपना, देखते हैं क्या डायग्राम बनेगा इसका. तो ये रहा हमारा 100 वोल्ट, और इसके आगे हम देखें तो 10 रेजिस्टेंस पे तो फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 10 किलो ओम. ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और ये जो ओपन हो जाएगा तो इसके अक्रॉस हमें निकालना है VC1. ठीक है, यहाँ तक. अगली अगर हम बात करें तो इंडक्टर अगर देखें तो इंडक्टर XL इक्वल्स टू ओमेगा L and F is 0, then it is 0, and the inductor becomes short and capacitor becomes open, so it is short. ठीक है. Similarly, the resistance remains same. Okay, it is 40k. Okay, now
let's see the capacitor again. We have capacitor, then capacitor is open, and what is the voltage? It is VC2. It is VC2, and further we have inductor that is short. Okay, let's erase it. अगर इसके आगे देखें हमारा फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आगे देखें फिर एक हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और उस पर दे रखा है VC3। ठीक है यहाँ तक? सो होपफुली ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ वी जस्ट आल्सो ड्रॉ द कैपेसिटेंस वैल्यू सो दैट वी कैन क्लियर द डायग्राम। 2F is 3F and it is 1F। ओके, सो देखते हैं ना, अब चेक करते हैं। ये तो ओपन सर्किट हो गया यहाँ पर, सॉरी ये जो है, अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर मैं KVL लगा के देखता हूं, या हम बात करें टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, फर्स्ट वी जस्ट टेक दिस थिंग। अगर मैं इस पॉइंट में देखो KVL लगा के देखता हूं, सो VC माइनस VR, VC1 माइनस VR इक्वल्स टू 0, सो VC1 इज इक्वल्स टू VR। जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के पास होगा वही जो होगा कैपेसिटर के पास होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में। और इसके पास वोल्टेज कैसे निकलेगा? इसके पास वोल्टेज निकालने का तरीका है आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। सो वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं 100 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस हाउ मच 10। ओके, सो इट इज 50, 1, 2, इट इज 80 वोल्ट। सो योर VC1 is 80 volt. Let's check your answer. VC1 is 80 volt is here in two options. Just two options are eliminating. Okay, the first, the second, last two options are eliminating. Okay, now if you see this thing, we have, let's take the blue pen. Okay, now if you see this voltage is your 80 volt. Okay, now this is the open path. For the open path there is no voltage for the resistance. But if you see the diagram like that, we are having a 80 volt source. We are having a 80 volt source, and in that there are two capacitors in series. So it is, first one is of how much? 2F, and second one is of how much? It is of 3 farad. Okay, so we have to find the VC2 here across this and VC3 across this. Okay, so let's check answer, and if you take both sums should be 80. Yeah, both are 80. Okay, so we cannot eliminate your option. So let's find the VC2 first. Then VC2 is what? 80. Now अगर अब आपको याद हो, जब हम वोल्टेज डिवीजन रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लगाते तो मल्टीप्लाई करते थे सेम रेजिस्टेंस या सेम इंडक्टेंस से, बट अगर कैपेसिटर के लिए वोल्टेज डिवीजन लगाते थे तो जिसके अक्रॉस निकालते हैं उससे जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज 3 and 3 plus 2 5, so 80 into 3 divided by 5, so 5, so it is 1 and it is 3, so it is 16, तो 48 आएगा। जो VC2 है 48 आएगा। सो VC2 देखिए 48 किस में पड़ा हुआ है? B में पड़ा हुआ है। सो इट इज मोर सफिशिएंट टू ऑप्ट योर ऑप्शन। सो योर आंसर इज B करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? सो ये क्वेश्चन आपको देखा है कि अगर हमने जस्ट हाउ योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर वर्क्स ऑन द DC and initially and finally or the steady state condition, if you know, then you can easily calculate the voltage across or the current through the inductor. And they can also ask the energy stored in the inductor or the capacitor, because energy stored in the inductor is half Li square and energy stored in the capacitor is half CV square. Such type of question may ask in your exam. सो बस आपको आना चाहिए KVL, KCL और ओपन और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पता होनी चाहिए। इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो ओपन और शॉर्ट कैसे होते हैं वो देखिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, तो एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने RLC सर्किट्स पर, और फिर इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक ये फिनिश करते हैं। और इसके एक न्यूमेरिकल के बाद हम नया टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ पावर। तो देखते हैं एक और न्यूमेरिकल ऑन योर RLC सर्किट। सो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। सो क्वेश्चन जो है आपका, now your question is in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure
in the circuit shown in figure, the current source I is 1 ampere, okay, comma, the voltage source V equals to 5 volt, comma, R1 is equals to R2 equals to R3 is equals to 1 ohm, comma, L1 is equals to L2 is equals to L3, that is 1H, okay. Then again further comma, C1 is equals to C2 equals to 1 farad, ठीक है। यहां तक आगे बात करते हैं the current in ampere through R3 and the voltage source V respectively will be, ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 1,4, देन वी हैव 5,1, सी ऑप्शन जो है आपका है 5,2 और जो लास्ट ऑप्शन है आपका है 5,4। एक डायग्राम गिवन है, देखते हैं क्या डायग्राम है। इंडक्टर L1, देन एक करंट सोर्स है I एम्पियर का, और इसके आगे दे रखा है एक R1 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर एक C1 दे रखा है, और C1 के साथ जो है L2 जो है वो सीरीज में है, ठीक है। यहां तक आगे देखते हैं, एक R2 रेजिस्टेंस दे रखा है, और फिर इसके बाद दे रखा है एक L3, और L3 के साथ जो है R3 है सीरीज में है, L3 के साथ R3 सीरीज में है। इन दोनों के साथ एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में दे रखा है, उसकी वैल्यू है C2, और इनके साथ एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है V, ठीक है। यहां तक ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। यहां तक तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या हो सकता है। Now, in the circuit shown in figure, the current source is 1 ampere, okay. This source is of 1 ampere, ठीक है। Then, and the voltage source is of 5 volt, okay. This is your 5 volt. Then, R1, R2 are 1 ohm, okay. These are 1 ohm. This is a 1 ohm. Then, L1, L2, 3 are 1H, okay. 1H, and it is 1H, this is also 1H, and how much the capacitors? Capacitors are also 1 farad and 1 farad, ठीक है यहां तक। Then current and the voltage across the R3, okay. So now first अगर हम यहां देखें, ये दो both sources are of DC, and for the DC again you have the frequency 0, और जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो अगर आप देखें जो XL होता है वो ओमेगा L होता है, और XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो अगर फ्रीक्वेंसी को 0 करेंगे तो XL क्या हो जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या होता है भाई शॉर्ट, ठीक है। अगर यहां से देखें जो XC है वो फ्रीक्वेंसी के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो कैप्चर क्या हो जाएगा फिर से ओपन सर्किट, ठीक है यहां तक। सो इन कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए डायग्राम फॉर द ओपन एंड शॉर्ट कंडीशन, देखते हैं क्या होगा। तो ये तो हो गया हमारा इंडक्टर शॉर्ट, और ये रहा हमारा 1 एम्पियर का करंट सोर्स, ठीक है। यहां तक रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ये सब आपको पता ही है, R1 1 ओम। कैपेसिटर जो हो गया फिर ओपन सर्किट हो गया, देखिए
इंडक्टर फिर हो गया शॉर्ट, और अगर इंडक्टर आ गया तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज IL1, suppose it is IL1 and okay, then it is VC1 and it is IL2. In further question, if you ask find current through the inductor also, then we can also take. Then it is R2 2 ohm, then इंडक्टर फिर से शॉर्ट हो गया हमारा, इसको मैं बोल दे रहा हूं IL3, ठीक है, और हमारा R3 है, ये रहा हमारा R3, ठीक है। और इसी के लिए हमें हमारा जो टारगेट क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। और फिर हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा, और ये रहा हमारा VC2, ठीक है यहां तक। और इसके आगे क्या लगा हुआ है अगर देखें तो ये लगा हुआ है हमारा एक वोल्टेज सोर्स, कितनी वैल्यू का, 5 वोल्ट का। डायग्राम समझ में आ गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इंडक्टर शॉर्ट, रेजिस्टेंस एज इट इज, कैपेसिटर ओपन, रेजिस्टेंस एज इट इज, इंडक्टर शॉर्ट, रेजिस्टेंस एज इट इज, इंडक्टर शॉर्ट हो गया एंड कैपेसिटर ओपन, ठीक है यहां तक। तो देखते हैं क्या होगा नाउ। इफ यू सी दिस डायग्राम, देन this 5 volt and R3 are in parallel, okay, so the voltage across this VR3 is equals to 5 volt because they are in parallel, and for the parallel combination voltage is same, okay. Now if you see this thing, then we have, now if these are in parallel, then I3 is what? I3 is equals to V3 upon what? It is V3 upon R3, okay. And R3 is what? It is V3 is 5 now, and it is 1, so it is 5 ampere. So what are the question? The current through the R3, that is 5 ampere. Is there any option of 5? Yes, we have 5, okay. Then if there is 5 current, okay, okay, you have to find the current through the R3 and the voltage source, okay, we have find, okay. So we have find the current through the R3 ohm. So this is your first answer. Let's check your answer. 5 ampere, first option is 5 ampere, should be 5 ampere. This is present, this is present, this is present. So your A option is 100% wrong, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। अब अगर देखें यहां से, अगर मैं इस पॉइंट पर KCL लगाऊं, देखिए, तो अगर देखें यहां से, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहां तक 1 एम्पियर आ रही है। ये ओपन पाथ है, तो यहाँ कितनी जा रही होगी, 0। अगर यहाँ पर इन 1 हो रही है और अगर 0 जा रही है, तो पूरी की पूरी करंट जा रही है अकॉर्डिंग टू KCL 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है ना आपको। और ये आपकी 5 एम्पियर है, कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं इस पॉइंट पर KCL लगा लूं, क्या लगा लूं, इस पॉइंट पर KCL लगा, सॉरी, इस पॉइंट पर अगर मैं KCL लगाता हूं, देखता क्या होता है, KCL -1, ठीक है यहाँ तक, प्लस ऑफ 5 एंड लेट इट इज आउटगोइंग बिकॉज वी डोंट नो द डायरेक्शन, I equals to 0, then it is 4 plus I equals to 0, then I is -4, and -4 means what, it is coming now, so it is coming from this ampere. So what are the question is that current through the R3, that is 5 ampere, and what is the current through the voltage source and voltage source respectively, that means जो वोल्टेज सोर्स है उसके पास भी करंट कितनी है, 4 है। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 5 और 4 अवेलेबल है, तो अगर मैं 5 और 4 के देखूं तो वो कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। सो जस्ट पिक योर आंसर, दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या कर रहा था। जो हमें ये क्वेश्चंस की डेटा से ये क्लियर हो गया था कि जो क्वेश्चन सोर्सेज है वो डीसी है, और डीसी पर जो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमने ओपन और शॉर्ट के रिस्पेक्टिव में क्या करा, डायग्राम बना लिया था। डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि ये जो 5 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर सेम है तब ओहम्स लॉ लगा लें, I3 इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 5 एम्पियर आ गया था। ये बात समझ में आ गई थी ना।
फिर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक और पार्ट चाहिए था कि जो वोल्टेज सोर्स है इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है। तो हमने क्या सीखा था बेसिक में, सीरीज में करंट कैसी रहेगी, सेम। तो यहां तक तो करंट सेम आई। और ओपन पाथ में करंट कितनी आती है, 0। तो अगर इस नोड पर या इस जंक्शन पर या इस पॉइंट पर 1 एम्पीयर आ रही है और इधर 0 जा रही है, तो पूरी की पूरी करंट किधर चली गई, R2 में चली गई। अब अगर R2 में यहां तक चली गई तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, KCL लगा लिया। KCL लगा के देखा था, हमारा आंसर कितना आ रहा है, -4। और -4 का मतलब क्या हुआ, जो ये वोल्टेज सोर्स है करंट प्रोवाइड करा रहा है और इसको अगर सेटिस्फाई भी कराना है तो देखो सेटिस्फाई करा के देख लो, 1 4 then it is 5। ओके, सो KCL इज सेटिस्फाइड। अगर थोड़ा सा और देखें यहाँ पर कि अगर कुछ एक्स्ट्रा और पूछ लेता है इस क्वेश्चन में तो क्या होता, देखें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए पुराने क्वेश्चन में हमारे पास कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज आ गया था। अगर आपसे ये कह दिया जाता कि इंडक्टर के थ्रू करंट्स बताओ, क्या बताओ, इंडक्टर के थ्रू करंट, तो देखो पहला आंसर, अगर मैं IL1 देखूं तो IL1 कितना है, सीरीज में है ना, तो IL1 हो गया 1 एम्पियर। ठीक है यहां तक। अगली बात करो IL2, वेयर इज IL2, यस IL2 इज 0, IL2 इज 0। ठीक है यहां तक। वेयर इज IL3, IL3 इज 5 एम्पियर, IL3 इज 5 एम्पियर। ठीक है यहां तक। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और सोच सकता था, एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI स्क्वायर, हो जाएगा ना, क्योंकि L पता है I पता है तो हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता था इसका, कि अगर कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज बताना था, अगर कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज बताना है तो मैं देखो एक काम और एक्स्ट्रा कर रहा हूं आपको। अगर मुझे VC1 बताना है तो VC1 बनाने के लिए मुझे KVL लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां लगा के दिखा रहा हूं। देखो एक्स्ट्रा पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा, जस्ट अप्लाइंग द KVL हियर। ओके, सो VC1 करंट है 1 और रेजिस्टेंस है 2, तो -1 into 2। Okay, then how much is the voltage is 5, -5 equals to 0, then your VC1 is equals to 7 volt। ठीक है यहाँ तक। तो मैं एक्स्ट्रा मार्क कर रहा हूं, VC1 जो हो गया कितना हो गया, 7 वोल्ट। ठीक है यहाँ तक। अगले पार्ट की बात करूं तो हमसे पूछा था, अगर VC2 और पूछता तो VC2 तो देखो इसके साथ पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या सेम रहते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। सो VC2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई। सो VC2 जो आ गया वो आपका आ गया 5 वोल्ट। फिर इनसे भी क्वेश्चन बन सकता था कि इनके थ्रू एनर्जी स्टोर बताओ, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो होपफुली ये निकल जाएगा ना यहां तक। तो इस टाइप का क्वेश्चन, करंट थ्रू द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है। और क्वेश्चन ये काफी इजी है, बस आपको आना क्या चाहिए, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर और KVL KCL बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं AC का, क्योंकि हमने अब तक जो फिनिश कर लिया, अगर यहां तक बात करी जाए तो एवरेज RMS का कॉन्सेप्ट हो गया। एवरेज RMS के बाद हमने फेजर देखा था। फेजर के बाद जो अगर हम देखें तो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव देख लिए थे, कौन कहाँ लैग करता है, लीड करता है, किसके लिए P और Q 0 होती है, ठीक है, किसके लिए पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, किसके लिए पावर फैक्टर मिनिमम होता है। फिर हमने क्या देखा था, R, L और C के सीरीज कॉम्बिनेशन, RL सीरीज, RC सीरीज, RLC सीरीज देखे थे, उन पर न्यूमेरिकल भी देख लिए। इसके बाद देखा था हमने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, RL पैरेलल, RC पैरेलल और RLC पैरेलल। ठीक है यहां तक। तो ये सारा देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है दैट इज टाइप्स ऑफ पावर। तो अब हम टाइप्स ऑफ पावर देखेंगे, और जो टाइप्स ऑफ पावर में है 3 तरीके की पावर देखना है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट और कॉम्प्लेक्स पावर। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।